کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خوش نہیں ہوتے، پھر بھی اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزار ہی دیتے ہیں نا۔ دل نشین، چاہت یک طرفہ ہو تو صلے میں مایوسی ملتی ہے۔ سمجھ گئی۔ میں تو ابھی تک اپنے لیے لڑ رہا تھا، تمہارے لیے، تمہارے اپنوں سے لڑ رہا تھا، لیکن تمہارے آنسوؤں سے نہیں لڑ سکتا، تمہاری ماں کی ٹوٹتی سانسوں سے نہیں لڑ سکتا۔ کیا تمہاری ان لوگوں سے ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ میرے نالج میں تو نہیں ہے۔ تو یہ کھچڑی پک رہی تھی اتنے دنوں سے۔ واہ میرا بی بی واہ، جواب نہیں ہے تمہارا۔ معصومیت کا ڈھونگ رچاتے رچاتے ان معصوموں کا بوجھ اتار پھینکا۔ ڈرامہ سیف فتور کی آخری قسط میں کیا دل نشین چھوڑ جائے گی گھر، اور کیا حیدر روک پائے گا دل نشین کو، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ پریڈکشن ہے، حالات و واقعات تبدیل ہو بھی سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دل نشین نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ حیدر کے دل سے محمل کو نکال باہر کرے، لیکن ہر دفعہ دل نشین ناکام ہو جاتی اور کہیں نہ کہیں سے محمل آن ٹپکتی۔ دل نشین کا حیدر کی طرف سے دل بدزن ہو گیا اور کہا کہ آئندہ میں حیدر کے ساتھ وفا نہیں کروں گی۔ دل نشین نے گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ دل نشین کے ساتھ سمجھا رہی تھی کہ دل نشین یہ تم بہت برا کر رہی ہو، اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کسی کو ایک منٹ بھی نہیں لگتا کسی کی جگہ ہتھیانے میں، اور میں تو تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ دل نشین ابھی وقت دیکھو، ابھی حالات کو سمجھو، اگر تم نے حالات کو نہ سمجھا تو تمہارے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نہیں امی، میں نے بہت کوشش کی کہ میں حیدر کے دل سے محمل کو نکال باہر کروں، لیکن پہلی محبت کوئی بھی نہیں بلا سکتا، اور میں نے جتنا برداشت کرنا تھا میں نے کر لیا۔ اب اپنی والدہ کے گھر جا رہی ہوں۔ جبکہ دریاور کو بہت غصہ تھا اور کہا کہ ضرور اس عاشق کی وجہ سے اپنا سسرال چھوڑ کر آئی ہے۔ امی میں بتا رہا ہوں میں زیادہ دیر اسے برداشت نہیں کروں گا۔ دل نشین کشمکش کا شکار ہو کر رہ گئی کہ آیا وہ کدھر جائے، جبکہ حیدر دل نشین کو سمجھایا کہ دل نشین تو مجھ سے ناراض مت ہونا، محمل جو کہ میرا ماضی تھا، ہاں میں اسے محبت کرتا تھا، لیکن اب دل نشین صرف تم ہی ہو۔ دل نشین نے حیدر سے کہا کہ حیدر میں دل تسلیم نہیں کرتا، اب محمل کی یادوں سے آزاد ہو گئے ہیں، جبکہ ادھر محمل نے جو دل نشین اور حیدر دونوں کا جنا حرام کر رکھا تھا، اس کی بس یہ کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے حیدر کو حاصل کر لے اور دل نشین کو حیدر کی زندگی سے نکال باہر کرے۔ محمل کا وہی معمول تھا، روز آئے دن حیدر کے گھر چکر لگانا، جبکہ آج دل نشین نے حیدر اور محمل کو ایک ساتھ دیکھا شاپنگ مال میں تو دل نشین کے ہوش اڑ گئے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شوہر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کئی طرح کے سوالات تھے جنہوں نے دل نشین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دل نشین اب مجبور ہو گئی تھی کہ وہ حمزہ کے بارے میں سوچے، کیونکہ حمزہ جسے وہ پہلے محبت کرتی تھی، لیکن حیدر کی محبت نہ ملنے کی صورت میں دل نشین نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف حمزہ کے بارے میں سوچے گی اور حیدر کو اس کے حال پر چھوڑ دے گی۔ حیدر کی والدہ نے حیدر کو سمجھایا کہ بیٹا رشتے اتنی آسانی سے نہیں بنتے، انہیں نبھانا پڑتا ہے، اگر تم اس مقصد میں ناکام ہوگے تو میں تمہیں بتا رہی ہوں تم زندگی کا وہ حصہ کھو دو گے جو تمہیں کبھی واپس نہیں ملے گا۔ اور دل نشین ایک چاہت کرنے والی بیوی ہے، اس کی چاہت کو سمجھو، اور تمہیں دل نشین میں وہ دلچسپی کیوں نہیں ہے جو تم محمل میں تلاش کرتے ہو، وہ تمہارا ماضی تھا، اپنے ماضی کو بلا دو اور دل نشین کو اپناؤ، وہ ساری زندگی تمہارا ساتھ دے گی۔ محمل ایک چنگاری ہے جو خود کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی جلس کر رکھ دے گی اور تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہ جائے گا۔
ड्रामा सैफ फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिलनशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिलनशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिलनशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिलनशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिलनशीन का हैदर की तरफ से दिल बदन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिलनशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया, जबकि दिलनशीन के साथ समझा रही थी कि दिलनशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में, और मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि दिलनशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करूं, लेकिन पहली मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता और मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। जबकि दरियावर को बहुत गुस्सा था और कहा कि जरूर उस आशिक की वजह से अपना ससुराल छोड़कर आई है। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिलनशीन कश्मकश का शिकार होकर रह गई कि आया वो किधर जाए, जबकि हैदर ने दिलनशीन को समझाया कि दिलनशीन तुम उससे नाराज मत होना। महमल जो कि मेरा माजी था, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब दिलनशीन सिर्फ तुम ही हो। दिलनशीन ने हैदर से कहा कि हैदर मैं दिल तस्लीम नहीं करता, अब महमल की यादों से आजाद हो गए हैं। जबकि इधर महमल ने जो दिलनशीन और हैदर दोनों का जिना हराम कर रखा था, उसकी बस यही कोशिश थी वो किसी तरीके से हैदर को हासिल कर ले और दिलनशीन को हैदर की जिंदगी से निकाल बाहर करे। महमल का वही मामूल था, रोज आए दिन हैदर के घर चक्कर लगाना। जबकि आज दिलनशीन ने हैदर और महमल को एक साथ देखा शॉपिंग मॉल में तो दिलनशीन के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई तरह के सवालात थे जिन्होंने दिलनशीन को झंझोड़ कर रख दिया था। दिलनशीन अब मजबूर हो गई थी कि वो हमजा के बारे में सोचे, क्योंकि हमजा जिसे वो पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ना मिलने की सूरत में दिलनशीन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हमजा के बारे में सोचेगी और हैदर को उसके हाल पर छोड़ देगी। हैदर की वालदा ने हैदर को समझाया कि बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें निभाना पड़ता है। अगर तुम इस मकसद में नाकाम होगे तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम जिंदगी का वो हिस्सा खो दोगे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और दिलनशीन एक चाहत करने वाली बीवी है, उसकी चाहत को समझो। और तुम्हें दिलनशीन में वो दिलचस्पी क्यों नहीं है जो तुम महमल में तलाश करते हो, वो तुम्हारा माजी था, अपने माजी को बुला दो और दिलनशीन को अपनाओ, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। महमल एक चिंगारी है जो खुद के साथ साथ तुम्हें भी जुलस कर रख देगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। ड्रामा सैफ फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिलनशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिलनशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिलनशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिलनशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिलनशीन का हैदर की तरफ से दिल बदन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिलनशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया, जबकि दिलनशीन के साथ समझा रही थी कि दिलनशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में, और मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि दिलनशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करूं, लेकिन पहली मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता और मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। जबकि दरियावर को बहुत गुस्सा था और कहा कि जरूर उस आशिक की वजह से अपना ससुराल छोड़कर आई है। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिलनशीन कश्मकश का शिकार होकर रह गई कि आया वो किधर जाए, जबकि हैदर ने दिलनशीन को समझाया कि दिलनशीन
नशीन तुम उससे नाराज मत होना। महमल जो कि मेरा माजी था, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब दिलनशीन सिर्फ तुम ही हो। दिलनशीन ने हैदर से कहा कि हैदर मैं दिल तस्लीम नहीं करता, अब महमल की यादों से आजाद हो गए हैं। जबकि इधर महमल ने जो दिलनशीन और हैदर दोनों का जिना हराम कर रखा था, उसके बाद ये कोशिश थी वो किसी तरीके से हैदर को हासिल कर ले और दिलनशीन को हैदर की जिंदगी से निकाल बाहर करे। महमल का वही मामूल था, रोज आए दिन हैदर के घर चक्कर लगाना। जबकि आज दिलनशीन ने हैदर और महमल को एक साथ देखा शॉपिंग मॉल में, तो दिलनशीन के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई तरह के सवालात थे जिन्होंने दिलनशीन को झंझोड़ कर रख दिया था। दिलनशीन अब मजबूर हो गई थी कि वो हमजा के बारे में सोचे, क्योंकि हमजा जिसे वो पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ना मिलने की सूरत में दिलनशीन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हमजा के बारे में सोचेगी और हैदर को उसके हाल पर छोड़ देगी। हैदर की वालदा ने हैदर को समझाया कि बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें निभाना पड़ता है। अगर तुम इस मकसद में नाकाम होगे तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम जिंदगी का वो हिस्सा खो दोगे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और दिलनशीन एक चाहत करने वाली बीवी है, उसकी चाहत को समझो। और तुम्हें दिलनशीन में वो दिलचस्पी क्यों नहीं है जो तुम महमल में तलाश करते हो। वो तुम्हारा माजी था, अपने माजी को बुला दो और दिलनशीन को अपनाओ, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। महमल एक चिंगारी है जो खुद के साथ साथ तुम्हें भी जुलस कर रख देगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। ड्रामा सैफ फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिलनशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिलनशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिलनशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिलनशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिलनशीन का हैदर की तरफ से दिल बदन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिलनशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया। जबकि दिलनशीन के साथ समझा रही थी कि दिलनशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में। और मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि दिलनशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करूं, लेकिन पहली मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता और मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। जबकि इधर यावर को बहुत गुस्सा था और कहा कि जरूर उस आशिक की वजह से अपना ससुराल छोड़कर आई है। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिलनशीन कश्मकश का शिकार होकर रह गई कि आया वो किधर जाए। जबकि हैदर ने दिलनशीन को समझाया कि दिलनशीन तुम उससे नाराज मत होना। महमल जो कि मेरा माजी था, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब दिलनशीन सिर्फ तुम ही हो। दिलनशीन ने हैदर से कहा कि हैदर मैं दिल तस्लीम नहीं करता, अब महमल की यादों से आजाद हो गए हैं। जबकि इधर महमल ने जो दिलनशीन और हैदर दोनों का जिना हराम कर रखा था, उसके बाद ये कोशिश थी वो किसी तरीके से हैदर को हासिल कर ले और दिलनशीन को हैदर की जिंदगी से निकाल बाहर करे। महमल का वही मामूल था, रोज आए दिन हैदर के घर चक्कर लगाना। जबकि आज दिलनशीन ने हैदर और महमल को एक साथ देखा शॉपिंग मॉल में, तो दिलनशीन के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई तरह के सवालात थे जिन्होंने दिलनशीन को झंझोड़ कर रख दिया था। दिलनशीन अब मजबूर हो गई थी कि वो हमजा के बारे में सोचे, क्योंकि हमजा जिसे वो पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ना मिलने की सूरत में दिलनशीन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हमजा के बारे में सोचेगी और हैदर को उसके हाल पर छोड़ देगी। हैदर की वालदा ने हैदर को समझाया कि बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें निभाना पड़ता है। अगर तुम इस मकसद में नाकाम होगे तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम जिंदगी का वो हिस्सा खो दोगे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और दिलनशीन एक चाहत करने वाली बीवी है, उसकी चाहत को समझो। और तुम्हें दिलनशीन में वो दिलचस्पी क्यों नहीं है जो तुम महमल में तलाश करते हो। वो तुम्हारा माजी था, अपने माजी को बुला दो और दिलनशीन को अपनाओ, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। महमल एक चिंगारी है जो खुद के साथ साथ तुम्हें भी जुलस कर रख देगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा।
ड्रामा सैफ फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिलनशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिलनशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिलनशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिलनशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिलनशीन का हैदर की तरफ से दिल बदन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिलनशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया, जबकि दिलनशीन के साथ समझा रही थी कि दिलनशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में, और मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि दिलनशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करूं, लेकिन पहली मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता और मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। जबकि दरियावर को बहुत गुस्सा था और कहा कि जरूर उस आशिक की वजह से अपना ससुराल छोड़कर आई है। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिलनशीन कश्मकश का शिकार होकर रह गई कि आया वो किधर जाए, जबकि हैदर दिलनशीन को समझाया कि दिलनशीन तुम उससे नाराज मत होना। महमल जो कि मेरा माजी था, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब दिलनशीन सिर्फ तुम ही हो। दिलनशीन ने हैदर से कहा कि हैदर मैं दिल तस्लीम नहीं करता, अब महमल की यादों से आजाद हो गए हैं। जबकि इधर महमल ने जो दिलनशीन और हैदर दोनों का जिना हराम कर रखा था, उसके बाद यही कोशिश थी वो किसी तरीके से हैदर को हासिल कर ले और दिलनशीन को हैदर की जिंदगी से निकाल बाहर करे। महमल का वही मामूल था, रोज आए दिन हैदर के घर चक्कर लगाना। जबकि आज दिलनशीन ने हैदर और महमल को एक साथ देखा शॉपिंग मॉल में तो दिलनशीन के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई तरह के सवालात थे जिन्होंने दिलनशीन को झंझोड़ कर रख दिया था। दिलनशीन अब मजबूर हो गई थी कि वो हमजा के बारे में सोचे, क्योंकि हमजा जिसे वो पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ना मिलने की सूरत में दिलनशीन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हमजा के बारे में सोचेगी और हैदर को उसके हाल पर छोड़ देगी। हैदर की वालदा ने हैदर को समझाया कि बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें निभाना पड़ता है। अगर तुम इस मकसद में नाकाम होगे तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम जिंदगी का वो हिस्सा खो दोगे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और दिलनशीन एक चाहत करने वाली बीवी है, उसकी चाहत को समझो। और तुम्हें दिलनशीन में वो दिलचस्पी क्यों नहीं है जो तुम महमल में तलाश करते हो, वो तुम्हारा माजी था। अपने माजी को बुला दो और दिलनशीन को अपनाओ, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। महमल एक चिंगारी है जो खुद के साथ साथ तुम्हें भी जुलस कर रख देगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। ड्रामा सैफ फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिलनशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिलनशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिलनशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिलनशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिलनशीन का हैदर की तरफ से दिल बदन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिलनशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया, जबकि दिलनशीन के साथ समझा रही थी कि दिलनशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में, और मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि दिलनशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करूं, लेकिन पहली मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता और मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। जबकि दरियावर को बहुत गुस्सा था और कहा कि जरूर उस आशिक की वजह से अपना ससुराल छोड़कर आई है। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिलनशीन कश्मकश का शिकार होकर रह गई कि आया वो किधर जाए, जबकि हैदर दिलनशीन को समझाया कि
दिल नशीन तुम मुझसे नाराज मत होना। महमल जो कि मेरा माजी था, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब दिल नशीन सिर्फ तुम ही हो। दिल नशीन ने हैदर से कहा कि हैदर मैं दिल तस्लीम नहीं करता, अब महमल की यादों से आजाद हो गए हैं। जबकि इधर महमल ने जो दिल नशीन और हैदर दोनों का जिना हराम कर रखा था, उसकी बस यही कोशिश थी कि वो किसी तरीके से हैदर को हासिल कर ले और दिल नशीन को हैदर की जिंदगी से निकाल बाहर करे। महमल का वही मामूल था, रोज आए दिन हैदर के घर चक्कर लगाना। जबकि आज दिल नशीन ने हैदर और महमल को एक साथ देखा शॉपिंग मॉल में, तो दिल नशीन के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई तरह के सवालात थे जिन्होंने दिल नशीन को झंझोड़ कर रख दिया था। दिल नशीन अब मजबूर हो गई थी कि वो हमजा के बारे में सोचे, क्योंकि हमजा जिसे वो पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ना मिलने की सूरत में दिल नशीन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हमजा के बारे में सोचेगी और हैदर को उसके हाल पर छोड़ देगी। हैदर की वालदा ने हैदर को समझाया कि बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें निभाना पड़ता है। अगर तुम इस मकसद में नाकाम होगे तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम जिंदगी का वो हिस्सा खो दोगे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और दिल नशीन एक चाहत करने वाली बीवी है, उसकी चाहत को समझो। और तुम्हें दिल नशीन में वो दिलचस्पी क्यों नहीं है जो तुम महमल में तलाश करते हो। वो तुम्हारा माजी था, अपने माजी को बुला दो और दिल नशीन को अपनाओ, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। महमल एक चिंगारी है जो खुद के साथ साथ तुम्हें भी जुलस कर रख देगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। ड्रामा सैफ फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिल नशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिल नशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल नशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिल नशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिल नशीन का हैदर की तरफ से दिल बदन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिल नशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया। जबकि दिल नशीन के साथ समझा रही थी कि दिल नशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में। और मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि दिल नशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करूं, लेकिन पहली मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता और मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। जबकि इधर यावर को बहुत गुस्सा था और कहा कि जरूर उस आशिक की वजह से अपना ससुराल छोड़कर आई है। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिल नशीन कश्मकश का शिकार होकर रह गई कि आया वो किधर जाए। जबकि हैदर ने दिल नशीन को समझाया कि दिल नशीन तुम मुझसे नाराज मत होना। महमल जो कि मेरा माजी था, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब दिल नशीन सिर्फ तुम ही हो। दिल नशीन ने हैदर से कहा कि हैदर मैं दिल तस्लीम नहीं करता, अब महमल की यादों से आजाद हो गए हैं। जबकि इधर महमल ने जो दिल नशीन और हैदर दोनों का जिना हराम कर रखा था, उसकी बस यही कोशिश थी वो किसी तरीके से हैदर को हासिल कर ले और दिल नशीन को हैदर की जिंदगी से निकाल बाहर करे। महमल का वही मामूल था, रोज आए दिन हैदर के घर चक्कर लगाना। जबकि आज दिल नशीन ने हैदर और महमल को एक साथ देखा शॉपिंग मॉल में, तो दिल नशीन के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई तरह के सवालात थे जिन्होंने दिल नशीन को झंझोड़ कर रख दिया था। दिल नशीन अब मजबूर हो गई थी कि वो हमजा के बारे में सोचे, क्योंकि हमजा जिसे वो पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ना मिलने की सूरत में दिल नशीन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हमजा के बारे में सोचेगी और हैदर को उसके हाल पर छोड़ देगी। हैदर की वालदा ने हैदर को समझाया कि बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें निभाना पड़ता है। अगर तुम इस मकसद में नाकाम होगे तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम जिंदगी का वो हिस्सा खो दोगे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और दिल नशीन एक चाहत करने वाली बीवी है, उसकी चाहत को समझो। और तुम्हें दिल नशीन में वो दिलचस्पी क्यों नहीं है जो तुम महमल में तलाश करते हो। वो तुम्हारा माजी था, अपने माजी को बुला दो और दिल नशीन को अपनाओ, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। महमल एक चिंगारी है जो खुद के साथ साथ तुम्हें भी जुलस कर रख देगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा।
ड्रामा से फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिलनशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिलनशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिलनशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिलनशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिलनशीन का हैदर की तरफ से दिल बदन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिलनशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया, जबकि दिलनशीन के साथ समझा रही थी कि दिलनशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में, और मैं तो तुम्हें ये मशवरा दूंगी कि दिलनशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करूं, लेकिन पहली मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता और मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। जबकि दरियावर को बहुत गुस्सा था और कहा कि जरूर उस आशिक की वजह से अपना ससुराल छोड़कर आई है। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिलनशीन कश्मकश का शिकार होकर रह गई कि आया वो किधर जाए, जबकि हैदर दिलनशीन को समझाया कि दिलनशीन तुम उससे नाराज मत होना। महमल जो कि मेरा माजी था, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब दिलनशीन सिर्फ तुम ही हो। दिलनशीन ने हैदर से कहा कि हैदर मैं दिल तस्लीम नहीं करता, अब महमल की यादों से आजाद हो गए हैं। जबकि इधर महमल ने जो दिलनशीन और हैदर दोनों का जिना हराम कर रखा था, उसकी बस यही कोशिश थी कि वो किसी तरीके से हैदर को हासिल कर ले और दिलनशीन को हैदर की जिंदगी से निकाल बाहर करे। महमल का वही मामूल था, रोज आए दिन हैदर के घर चक्कर लगाना। जबकि आज दिलनशीन ने हैदर और महमल को एक साथ देखा शॉपिंग मॉल में तो दिलनशीन के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई तरह के सवालात थे जिन्होंने दिलनशीन को झंझोड़ कर रख दिया था। दिलनशीन अब मजबूर हो गई थी कि वो हमजा के बारे में सोचे, क्योंकि हमजा जिसे वो पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ना मिलने की सूरत में दिलनशीन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हमजा के बारे में सोचेगी और हैदर को उसके हाल पर छोड़ देगी। हैदर की वालदा ने हैदर को समझाया कि बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें निभाना पड़ता है। अगर तुम इस मकसद में नाकाम होगे तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम जिंदगी का वो हिस्सा खो दोगे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और दिलनशीन एक चाहत करने वाली बीवी है, उसकी चाहत को समझो। और तुम्हें दिलनशीन में वो दिलचस्पी क्यों नहीं है जो तुम महमल में तलाश करते हो, वो तुम्हारा माजी था। अपने माजी को बुला दो और दिलनशीन को अपनाओ, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। महमल एक चिंगारी है जो खुद के साथ साथ तुम्हें भी जुलस कर रख देगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। ड्रामा से फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिलनशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिलनशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिलनशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिलनशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिलनशीन का हैदर की तरफ से दिल बदन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिलनशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया, जबकि दिलनशीन के साथ समझा रही थी कि दिलनशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में, और मैं तो तुम्हें ये मशवरा दूंगी कि दिलनशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करूं, लेकिन पहली मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता और मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। जबकि दरियावर को बहुत गुस्सा था और कहा कि जरूर उस आशिक की वजह से अपना ससुराल छोड़कर आई है। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिलनशीन कश्मकश का शिकार होकर रह गई कि आया वो किधर जाए, जबकि हैदर दिलनशीन को समझाया कि
दिल नशीन तुम मुझसे नाराज मत होना। महमल जो कि मेरा माजी था, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब दिल नशीन सिर्फ तुम ही हो। दिल नशीन ने हैदर से कहा कि हैदर मैं दिल तस्लीम नहीं करता, अब महमल की यादों से आजाद हो गए हैं। जबकि इधर महमल ने जो दिल नशीन और हैदर दोनों का जिना हराम कर रखा था, उसके बस ये कोशिश थी कि वो किसी तरीके से हैदर को हासिल कर ले और दिल नशीन को हैदर की जिंदगी से निकाल बाहर करे। महमल का वही मामूल था, रोज आए दिन हैदर के घर चक्कर लगाना। जबकि आज दिल नशीन ने हैदर और महमल को एक साथ देखा शॉपिंग मॉल में, तो दिल नशीन के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई तरह के सवालात थे जिन्होंने दिल नशीन को झंझोड़ कर रख दिया था। दिल नशीन अब मजबूर हो गई थी कि वो हमजा के बारे में सोचे, क्योंकि हमजा जिसे वो पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ना मिलने की सूरत में दिल नशीन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हमजा के बारे में सोचेगी और हैदर को उसके हाल पर छोड़ देगी। हैदर की वालदा ने हैदर को समझाया कि बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें निभाना पड़ता है। अगर तुम इस मकसद में नाकाम होगे तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम जिंदगी का वो हिस्सा खो दोगे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और दिल नशीन एक चाहत करने वाली बीवी है, उसकी चाहत को समझो। और तुम्हें दिल नशीन में वो दिलचस्पी क्यों नहीं है जो तुम महमल में तलाश करते हो। वो तुम्हारा माजी था, अपने माजी को बुला दो और दिल नशीन को अपनाओ, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। महमल एक चिंगारी है जो खुद के साथ साथ तुम्हें भी जुलस कर रख देगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। ड्रामा सैफ फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिल नशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिल नशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल नशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिल नशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिल नशीन का हैदर की तरफ से दिल बदजन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिल नशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया। जबकि दिल नशीन के साथ समझा रही थी कि दिल नशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में। और मैं तो तुम्हें ये मशवरा दूंगी कि दिल नशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करूं, लेकिन पहली मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता और मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। जबकि इधर यावर को बहुत गुस्सा था और कहा कि जरूर उस आशिक की वजह से अपना ससुराल छोड़कर आई है। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिल नशीन कश्मकश का शिकार होकर रह गई कि आया वो किधर जाए। जबकि हैदर दिल नशीन को समझाया कि दिल नशीन तुम मुझसे नाराज मत होना। महमल जो कि मेरा माजी था, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब दिल नशीन सिर्फ तुम ही हो। दिल नशीन ने हैदर से कहा कि हैदर मैं दिल तस्लीम नहीं करता, अब महमल की यादों से आजाद हो गए हैं। जबकि इधर महमल ने जो दिल नशीन और हैदर दोनों का जिना हराम कर रखा था, उसके बस ये कोशिश थी वो किसी तरीके से हैदर को हासिल कर ले और दिल नशीन को हैदर की जिंदगी से निकाल बाहर करे। महमल का वही मामूल था, रोज आए दिन हैदर के घर चक्कर लगाना। जबकि आज दिल नशीन ने हैदर और महमल को एक साथ देखा शॉपिंग मॉल में, तो दिल नशीन के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई तरह के सवालात थे जिन्होंने दिल नशीन को झंझोड़ कर रख दिया था। दिल नशीन अब मजबूर हो गई थी कि वो हमजा के बारे में सोचे, क्योंकि हमजा जिसे वो पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ना मिलने की सूरत में दिल नशीन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हमजा के बारे में सोचेगी और हैदर को उसके हाल पर छोड़ देगी। हैदर की वालदा ने हैदर को समझाया कि बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें निभाना पड़ता है। अगर तुम इस मकसद में नाकाम होगे तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम जिंदगी का वो हिस्सा खो दोगे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और दिल नशीन एक चाहत करने वाली बीवी है, उसकी चाहत को समझो। और तुम्हें दिल नशीन में वो दिलचस्पी क्यों नहीं है जो तुम महमल में तलाश करते हो। वो तुम्हारा माजी था, अपने माजी को बुला दो और दिल नशीन को अपनाओ, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। महमल एक चिंगारी है जो खुद के साथ साथ तुम्हें भी जुलस कर रख देगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा।
ड्रामा सैफ फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिलनशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिलनशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिलनशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिलनशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिलनशीन का हैदर की तरफ से दिल बदन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिलनशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया, जबकि दिलनशीन के साथ समझा रही थी कि दिलनशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में, और मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि दिलनशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करूं, लेकिन पहली मोहब्बत कोई भी नहीं बुला सकता और मैंने जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अब अपनी वालदा के घर जा रही हूँ। जबकि दरियावर को बहुत गुस्सा था और कहा कि जरूर उस आशिक की वजह से अपना ससुराल छोड़कर आई है। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं ज्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिलनशीन कश्मकश का शिकार होकर रह गई कि आया वो किधर जाए, जबकि हैदर ने दिलनशीन को समझाया कि दिलनशीन तुम मुझसे नाराज मत होना। महमल जो कि मेरा माजी था, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब दिलनशीन सिर्फ तुम ही हो। दिलनशीन ने हैदर से कहा कि हैदर मैं दिल तस्लीम नहीं करता, अब महमल की यादों से आजाद हो गए हैं। जबकि इधर महमल ने जो दिलनशीन और हैदर दोनों का जिना हराम कर रखा था, उसकी बस ये कोशिश थी कि वो किसी तरीके से हैदर को हासिल कर ले और दिलनशीन को हैदर की जिंदगी से निकाल बाहर करे। महमल का वही मामूल था, रोज आए दिन हैदर के घर चक्कर लगाना। जबकि आज दिलनशीन ने हैदर और महमल को एक साथ देखा शॉपिंग मॉल में तो दिलनशीन के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शोहर मुझे धोखा नहीं दे सकता। कई तरह के सवालात थे जिन्होंने दिलनशीन को झंझोड़ कर रख दिया था। दिलनशीन अब मजबूर हो गई थी कि वो हमजा के बारे में सोचे, क्योंकि हमजा जिसे वो पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ना मिलने की सूरत में दिलनशीन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हमजा के बारे में सोचेगी और हैदर को उसके हाल पर छोड़ देगी। हैदर की वालदा ने हैदर को समझाया कि बेटा रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें निभाना पड़ता है। अगर तुम इस मकसद में नाकाम होगे तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम जिंदगी का वो हिस्सा खो दोगे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और दिलनशीन एक चाहत करने वाली बीवी है, उसकी चाहत को समझो। और तुम्हें दिलनशीन में वो दिलचस्पी क्यों नहीं है जो तुम महमल में तलाश करते हो, वो तुम्हारा माजी था। अपने माजी को बुला दो और दिलनशीन को अपनाओ, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। महमल एक चिंगारी है जो खुद के साथ साथ तुम्हें भी जुलस कर रख देगी और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। ड्रामा सैफ फतूर की आखिरी किस्त में क्या दिलनशीन छोड़ जाएगी घर और क्या हैदर रोक पाएगा दिलनशीन को, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले ये प्रेडिक्शन है, हालात और वाक़यात तब्दील हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिलनशीन ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हैदर के दिल से महमल को निकाल बाहर करे, लेकिन हर दफा दिलनशीन नाकाम हो जाती और कहीं ना कहीं से महमल आन टपकती। दिलनशीन का हैदर की तरफ से दिल बदन हो गया और कहा कि आइंदा मैं हैदर के साथ वफा नहीं करूंगी। दिलनशीन ने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया, जबकि दिलनशीन के साथ समझा रही थी कि दिलनशीन ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, अगर कोई छोड़कर चला जाए तो किसी को एक मिनट भी नहीं लगता किसी की जगह हथियाने में, और मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि दिलनशीन अभी वक्त देखो, अभी हालात को समझो। अगर तुमने हालात को ना समझा तो तुम्हारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैदर के दिल से